Hello everyone, today we are going to start with a new chapter, that is chapter 17, theoretical distributions. Okay, so before solving the exercise, let us have the introduction part, okay, the theory part of this chapter. Before starting, first of all, we should know that theoretical distribution is the continuous of probability distribution. Continuous means probability distribution हम थोड़े से अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, या इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ हेड, और इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली द हेड. ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्वाइस थ्राइस यहाँ तक हम जब हमें पॉसिबिलिटी निकालनी होती है तो हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. और जब इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे हेड निकालना है, एक कॉइन टॉस किया मैंने 10 टाइम्स, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी हेड की. तो जब ऐसे बड़े नंबर्स में आ जाते हैं तब हमें वहाँ पर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. ओके, सो इसलिए मैंने कहा कि थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सी theoretical distribution, page number starting only 17.1. yes, okay. Theoretical probability distribution, it is divided into two parts. One is discrete probability distribution and another is continuous probability distribution. So discrete probability means कि individual, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं. और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब जब वो कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाता है. Discrete probability distribution is again divided into two. One is binomial and other is Poisson distribution. And continuous probability distribution is only divided in one part, that is normal distribution. So let us start the introduction part now. We will do the theory and side by side we will also solve exercise set A, okay, because it is based on the theory only. So side by side we will solve set A also. Okay, so let's start. 17.1 Introduction. In chapter 17, it may be recalled, we discuss frequency distribution in a similar manner. We may think of a probability distribution where, just like distributing the total frequency to different class intervals, the total probability, that is 1, is distributed to different mass points in case of discrete. Again, discrete means individual random variable, or to different class intervals in case of continuous random variable. So it is divided, the probability is distributed, the total frequency in पर्टिकुलर क्लास इन मतलब एक इंडिविजुअल क्लास में डिवाइड करें या फिर कंटिन्यूस क्लासेस में डिवाइड करें हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को. सच अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज theoretical probability distribution. Since such a distribution exists in theory, we need to study theoretical probability distribution for the following important factors. Okay, so this theoretical probability distribution, see, as the name itself suggests, theoretical probability distribution means probability का वो continuation ही है, ठीक है, इसलिए उसे नाम दिया गया theoretical probability distribution. अब ये एग्जिस्ट होता है थियोरी में, बट एट द सेम टाइम ये हमारे लाइफ में भी इसका इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है, ये हम देखेंगे आगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A, an observed frequency distribution in many a case may be regarded as a sample, that is a representative part of a large, unknown, boundless universe or population, and we may be interested to know the form of such distribution. By fitting a theoretical probability distribution to an observed frequency distribution of, say, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, the lamp produced by a manufacturer, it may be possible for the manufacturer to specify the length of life of the lamp produced by him. yes, अभी किसी मैन्युफैक्चरर ने एक लैम्प प्रोड्यूस किया तो उससे पता ही होगा कि वो लैम्प की उम्र कितनी होगी, ठीक है, या वारंटी कितनी होगी, या कितने दिन वो टिकेगा, ठीक है, ये उसे तो पता ही होगा, उसका लाइफ स्पैन तो उसे पता ही होगा, राइट. Produced by him up to the reasonable degree of accuracy. By studying the effect of a particular type of missiles, it may be possible for our scientists to suggest the number of particular types of missiles. It may be possible for our scientists to to suggest the number of such missiles necessary to destroy an army position. तो हमें हमारे साइंटिस्ट को पता होगा कि कितने मिसाइल्स लगेंगे उस आर्मी के पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए. यस, by knowing the distribution of smokers, a social activist may warn the people of a locality about the nuisance
ऑफ एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग एंड सो ऑन। तो ये भी हमें पता चल सकता है। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड टू मेक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Setting confidence limits or testing statistical hypothesis about population parameters is based on the probability distribution of the population under consideration. Okay, so now a probability distribution also possesses all the characteristics of an observed distribution. We define, तो यहाँ पर basically हमें mean, median, mode, standard deviation यही पढ़ने मिलेगा। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर का वेटेज 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है, या तो 4 मार्क्स के लिए आएगा या तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। और मोस्टली इसमें पूछा जाता है कि मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, ठीक है। बट ये मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे उस मीन और मोड स्टैंडर्ड डेविएशन से अलग होता है। यहाँ पर फॉर्मूलेज अलग है जो हम जब सॉल्व करेंगे उसे तो हम सीखेंगे। ओके, same way we have done earlier. Again, a probability distribution may be either a discrete probability distribution or a continuous probability distribution depending on the random variable under study. Two important discrete probability distributions are, तो हमें पता है कि two important discrete probability distribution कौन सी है, एक तो binomial distribution है और दूसरी Poisson distribution है, ठीक है। Some important continuous probability distribution हमने ऑलरेडी देखा है कि discrete probability distribution 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक binomial और एक Poisson। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ना अब मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें फॉर एग्जांपल अगर कॉइन का ले रहे हैं एग्जांपल, तो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या ट्वाइस वो कॉइन टॉस करे या थ्राइस वो कॉइन टॉस करे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, करेक्ट। जब वो उससे आगे बढ़ जाता है यानी 3 से आगे बढ़ जाता है तो हमें वहाँ पर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा कि एक कॉइन 10 टाइम टॉस किया एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी की हेड हो, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। और तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि टू फाइंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना होता है तो हम वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो क्या होता है, फिनाइट होता है कि इन्फिनाइट होता है, तो इट इज़ फिनाइट। हम जानते हैं, यानी मैंने बोला 10 या 20 या 30 या 40, तो मुझे पता है कि कितना तक फाइंड करना है। सो दैट इज़ व्हेन वी यूज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है उसका डिस्क्रीट का, दैट इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पर बाइनोमियल ख़त्म होता है यानी कि फिनाइट ख़त्म होता है और हमें जब ऐसा ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होता है जहाँ पर हमें नंबर का पता ही नहीं है, मतलब एंडलेस है, ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर जब आ जाते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि वो नंबर कहाँ तक है, इट इज़ गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, तब वहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस। बिफोर दैट आ जाओ सेट ए पे, देखते हैं यहाँ तक का कुछ थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या। ओके, so come to set A. Yes, so exercise set A. A theoretical, first question, a theoretical probability distribution. So does not, first option है does not exist, सेकेंड ऑप्शन है एग्जिस्ट ओनली इन थियोरी, और थर्ड ऑप्शन है एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो एज आई सेड कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ थियोरी में ही नहीं बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी उसका यूज़ होता है। सो आवर ऑप्शन आंसर विल बी डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने देखा कितने में डिवाइड है, डिस्क्रीट में है, कंटिन्यूस में है, इन्फिनाइट तो नहीं है, तो हमारा ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी तो नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में बोथ ए और बी आया है, तो ए और बी, ठीक है। सो डी ऑप्शन, ओके। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, तो ए और बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, एक तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ए, बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सी कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सॉरी, एंड डी इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए ऑप्शन तो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट का पार्ट है, बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यूस का पार्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, एंड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग नॉर्मल ये तो हमने देखा ही नहीं है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 आवर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा सिर्फ एक ही पार्ट है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 आवर आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमें आगे की थियोरी करनी पड़ेगी, सो कम बैक। बाइनोमियल, okay, so 17.2 binomial distribution, one of the most important and frequently used discrete probability distribution is binomial distribution। तो देखा आपने, one of the most important and frequently, तो frequently use किया गया distribution होता है ये binomial distribution। It is derived from a particular type of random experiment known as Bernoulli process, named after the famous mathematician Bernoulli। Noting that a trial is an attempt to produce a particular outcome which is neither certain nor impossible. The characteristics of Bernoulli trials are stated below। तो हम क्यों करते ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम क्यों करते, ताकि एक पर्टिकुलर थिंग हम पता कर सकें। ट्रायल है, एक अटैम्प्ट, एक तरह का अटैम्प्ट है कि क्या पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी हो या वो पॉसिबिलिटी हो, तो इट इज़ जस्ट अ ट्रायल कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, हम वो पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो जो कि नाइदर सर्टन है नॉर इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज ईच ट्रायल, ध्यान से देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। तो इसके जो एसोसिएट्स होते हैं वो कहा जाते हैं 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स है। द ऑक्यूरेंस ऑफ वन ऑफ विच इज नोन एज सक्सेस एंड एज सच इट्स नॉन ऑक्यूरेंस एज अ फेलियर। ठीक है, तो एक दो आउटकम होते हैं, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो एक सक्सेस होता है तो दूसरा फेलियर होता है। करेक्ट, पॉसिबिलिटी यही है, या तो एक सक्सेस होगा या एक फेलियर होगा। करेक्ट, एज एन एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस यूजुअली ऑक्यूरेंस ऑफ हेड इज नोन एज सक्सेस। तो एक कॉइन मैंने टॉस किया तो एक्यूरेंस ऑफ हेड क्या होगा, अगर मुझे हेड फाइंड करना है तो ऑक्यूरेंस ऑफ हेड क्या होगा, सक्सेस होगा, और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ हेड क्या होगा, फेलियर होगा। राइट, नेक्स्ट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सो ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हर एक ट्रायल एक दूसरे से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। The probability of a success usually denoted by P and hence that of a failure usually denoted by Q। ठीक है, तो सक्सेस हम P से डिनोट करते हैं और फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं, जो ऑल्सो कैसे आता है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ठीक है, 1 में से सक्सेस को निकाल दो तो फेलियर आता है। रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस, सॉरी। फोर्थ, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज अ फिनाइट पॉजिटिव इंटीजर। सो एज आई सेड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज अ फिनाइट। ठीक है, हमें पता होता है कितना ट्रायल करना है, जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉइन 10 टाइम टॉस किया है तो 10 जो है वो हमारा फिनाइट नंबर है वहाँ पर, जो कि हमें पता है कि 10 टाइम्स ही ट्रायल मारना है। ठीक है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एंड पी टू बी डिनोटेड बाय एक्स सिमिलर टू बी एन पी इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। ठीक है, अब आगे अ डिस्क्रीट, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से लेके n तक होगी। ठीक है, ठीक है, साइड बाय साइड हम इसका ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, पैरामीटर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आप पेज नंबर 17.2 पर आ जाइए। जो हमने कैरेक्टर ये देखा था इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका सी पॉइंट देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग कॉन्फिडेंस
लिमिट्स और टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स है. किसके बारे में होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में होता है. ठीक है, ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? पैरामीटर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑप्शन पॉपुलेशन, बी सैंपल, सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी बोथ ए एंड बी. तो हमारे यहाँ का आंसर होगा पॉपुलेशन. ठीक है, सो पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामीटर इज. तो पैरामीटर का एग्जाम्पल क्या होगा? अगेन क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, सो सैम्पल मीन तो नहीं होगा. पॉपुलेशन मीन, यस पॉपुलेशन मीन हो सकता है. सी बाइनोमियल मीन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. सैम्पल साइज भी नहीं होगा. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन है, तो उसका एग्जाम्पल भी पैरामीटर का पॉपुलेशन मीन ही होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू. अभी ट्रायल क्यों करते हैं? हमने देखा ट्रायल क्यों करते हैं, ताकि हम एक आउटकम निकाल सके. ठीक है, जो कि नॉर सर्टन है नॉर इम्पॉसिबल, नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल. करेक्ट. तो देखिए, ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू. पेज नंबर इसका आंसर 17.2 पेज नंबर में 17.2 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? देखिए फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में, विच इज़ पर्टिकुलर आउटकम विच इज़ नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल. Trial is an attempt to produce a particular outcome which is neither certain nor impossible. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 7 का ऑप्शन होगा आंसर. ए है मेक समथिंग पॉसिबल, तो वो तो नहीं है. बी भी दिया है, हाँ. मेक समथिंग इम्पॉसिबल, तो वो भी नहीं है. सी प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो भी नहीं है. एंड डी प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज़ नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल, तो ये है यस. सो 7th क्वेश्चन आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? हमने 4 कैरेक्टर्स देखे. तो देखिए इसमें क्या क्या दिया. ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स. ओके, ये सही है. फिर ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन राइट, ये भी हमने देखा. ट्रायल्स आर इन्फिनाइट देखा क्या? सी ऑप्शन नहीं. ट्रायल्स आर फिनाइट. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स आर फिनाइट, तो सी ऑप्शन तो नहीं है. और डी बोथ ए एंड बी है, तो ए तो राइट है, बी भी राइट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी राइट. सो डी. ठीक है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 17.3 और 17.2 पर है. करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने देखा 17.3 पेज पर आ जाइए. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. देखा हमने यस. और जहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेके n तक होगी राइट. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है. तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विद पैरामीटर्स n and p, then x can assume, तो x can assume see any value between 0 and n, any value between 0 and n both inclusive, any whole number between 0 and n both inclusive. तो any value नहीं होता है, any whole number होता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव. 0 भी इंक्लूड होगा और n भी इंक्लूड होगा. ठीक है, तो सी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ अगेन कम टू द थियोरी पार्ट. सो अभी फॉर्मूले के नीचे वाला, वी मे नोट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कनेक्शन विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एज n इज ग्रेटर देन 0, p, q is greater than or equal to 0, it follows that f of x is greater than or equal to 0 for every x. Also, mean of x, f of x is equal to f of 0 plus f of 1 plus f of 2 plus dot 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 till f of n is equal to 1 का है. ओके, नाउ बी पॉइंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाय पैरामेट्रिक बोलते हैं एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक n एंड एक p, इसलिए इसे बाय पैरामेट्रिक कहते हैं. ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ n एंड p आर नोन देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन कम्प्लीटली. तो अगर हमें वैल्यू ऑफ n और p पता है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नोन कम्प्लीटली है. ठीक है, थर्ड पॉइंट सी, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय मीन इज इक्वल टू n इंटू p. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. और क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए. नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी.
हाँ उसके पहले 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, ये आगे का भी पढ़ लेते हैं फिर साथ में करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमने देखा n इंटू पी डी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ 2 पैरामीटर्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल। ठीक है, तो mode 0, the mode of binomial distribution is given by mode 0 is equal to largest integer contained in n plus 1p if n plus 1p is a non-integer, n plus 1p and n plus 1p minus 1 if n plus 1 into p is an integer. E point, the variance of the binomial distribution is given by variance is equal to n into p into q। ठीक है, ये वेरियंस का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला देखा और वेरियंस का फॉर्मूला देखा। Since p and q are numerically less than or equal to 1, npq is always smaller than np। ठीक है, तो वेरियंस हमेशा मीन से छोटा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, वेरियंस नीचे दिया है, वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। ठीक है, तो वेरियंस हमेशा मीन से छोटा होगा। Also variance of x attains its maximum value at p is equal to q is equal to 0.5 and this maximum value is n upon 4। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ x and y are two independent variables such that x similar to b तो n1 p and y similar to b then n21 is p then x plus y is similar to b n1 plus n2 to p। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऊपर के हिसाब से अभी एक्सरसाइज पे आ जाइए फिर से सेट ए पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल, ऑप्शन ए, बी नेवर पॉजिटिव स्क्यूड, ऑप्शन सी नेवर नेगेटिवली स्क्यूड एंड ऑप्शन डी इज सिमेट्रिकल व्हेन p इज इक्वल टू 0 पॉइंट। तो हमने देखा कि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.5, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा डी, सिमेट्रिकल व्हेन p इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो 11th का हमारा डी ऑप्शन है। 12th का, द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p इज, तो हमने देखा कि मीन का फॉर्मूला क्या है n इंटू पी, राइट। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, n इंटू पी। So mean of binomial distribution is NP. Next, the variance of binomial distribution with parameters n and p is, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज दिया है। एक्चुअली हमने क्या देखा, वेरियंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू देखा, बट यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए एन क्यू 1 माइनस क्यू ऑप्शन लिया है, क्योंकि p इज इक्वल टू, हमने देखा q इज इक्वल टू 1 माइनस पी या q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो बोथ आर एक सेम है। तो यहाँ पे p की जगह पे उन्होंने 1 माइनस क्यू लिया है, तो ठीक है, तो बट हमारा फिर फॉर्मूला वही बन रहा है एन पी क्यू। ठीक है, तो सी ऑप्शन हम ले लेते हैं एन क्यू 1 माइनस क्यू। ओके, एन एग्जाम्पल, सो 13th का आंसर है सी। नेक्स्ट 14, एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट बोला है और बाय पैरामेट्रिक, तो इसमें बाय पैरामेट्रिक होता है क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज किए, एक n और एक p। तो बाय पैरामेट्रिक किस में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स यूज किए, एक n और एक p, इसीलिए बाइनोमियल को बाय पैरामेट्रिक कहते हैं। सो यहाँ पर 14th का आंसर है ए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड। तो हमने देखा मीन एंड मोड का रिलेशन कुछ दिया था क्या, नहीं ना, वेरियंस और मीन का दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर नेवर इक्वल नहीं होगा, आर ऑलवेज इक्वल ये भी नहीं होता है, आर इक्वल व्हेन q इज इक्वल टू 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर मीन एंड मोड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड मोड इक्वल होते हैं जब हमारा q का वैल्यू 0.50 होता है, तभी वो इक्वल होते हैं, अदरवाइज नो। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा सी। सो ये बस याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, सो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या देखा, मीन क्या होता है, हमेशा वेरियंस से बड़ा होता है, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑलवेज मोर देन इट्स वेरियंस, सो येस, बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स वेरियंस, नो, सी ऑलवेज लेस देन इट्स वेरियंस, नो, ऑलवेज, डी ऑलवेज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, सो नो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज मोर देन इट्स वेरियंस। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी, सो फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी, इसके लिए हम पहले, so for a binomial distribution there may be,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन क्या दिया, 1 मोड, 2 मोड्स, सी ए दिया है एंड डी ए और बी. सो 1 मोड होता है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर में बी 1 मोड. तो यहाँ पर सी में भी ए ही आंसर दिया और ए में भी 1 मोड ही दिया है. तो आप चाहे ए लिख दो या सी, बोथ इज करेक्ट. ओके, सो ऐसे एग्जाम में नहीं होगा, एक ही ऑप्शन राइट होगा, बट यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक या समथिंग, दो ऑप्शन इज द राइट. तो ए 1 मोड है और सी ए ही ऑप्शन है, तो 1 मोड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एंड पीज. मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा पेज नंबर 17.3 में. देखिए ई पॉइंट में लास्ट लाइन, ऑल्सो वेरियंस ऑफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज एन अपॉन 4. राइट. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है एन अपॉन 4, दैट इज बी ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 20 no, question number 19, sorry. The method usually employed for fitting a binomial distribution is known as. तो यहाँ पर क्या होगा, so the method usually applied for fitting a binomial distribution is known as. उस मेथड को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स कहते हैं. मेथड ऑफ डेविएशन भी नहीं कहते, मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर 19, द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ मोमेंट्स. ठीक है, ये भी आप याद रखिए. सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, मोमेंट्स ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट्स. सॉरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइसन मॉडल. तो इसके लिए हमें फिर थियोरी पे जाना पड़ेगा. ओके, सो कम बैक टू थियोरी. उसके पहले 17.4 देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पार्ट बाकी था. एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, एंड ईच ट्रायल हैज जस्ट 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर. तो सबसे पहली बात, वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ट्रायल्स, और दूसरी बात जिसके आउटकम सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है. वहीं पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. It is applied in coin tossing experiment, sampling inspection plan, ठीक है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स एंड सो ऑन. इन सब में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो कम टू पेज नंबर 17.10. ठीक है, 17.3 Poisson distribution. Poisson distribution is a theoretical discrete probability distribution which can describe many processes. Simon Denis Poisson of France introduced this distribution way back in the year 1837. ओके, तो ये जो Poisson distribution है वो बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, और ये किसने किया है, साइमन डेनिस पॉइजन ने ऑफ फ्रांस इंट्रोड्यूस दिस. ओके, 1837 में. तो ये भी आप याद रख लीजिए. अब पॉइजन मॉडल क्या है. लेट अस थिंक ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज टी और टी प्लस डी टी, इज के टी, वेयर के इज ग्रेटर देन 0 इज अ कॉन्स्टेंट. सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 1 सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज वेरी लो. ठीक है, सो हैविंग मोर देन, एक सक्सेस से ज़्यादा होना इस टाइम इंटरवल में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज अर्लियर सक्सेस. द अबव मॉडल इज नोन एज पॉइजन मॉडल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स successes in a relatively long time interval t containing m small time interval t, that is t is equal to mt is given by. तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आ जाइए. अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स लैम्डा टू बी डिनोटेड बाय x सिमिलर टू p ब्रैकेट में स्मॉल m इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय. तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 टिल फिनाइट. ठीक है, सॉरी इन्फिनाइट वैल्यू. सो एक्स का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा.
Okay, next, it is wiser to remember the following important points in connection with the Poisson distribution. First point, since e raised to minus m is equal to e upon e raised to m is greater than 0, whatever may be the value of m is greater than 0. It follows that f of x is greater than or equal to 0 for every x. Also, it can be established that sigma x f of x is equal to 1. That is f of 0 plus f of 1 plus f of 2 till कहाँ तक रहेगा? Till the value of 1 तक रहेगा. ठीक है. Second point, Poisson distribution is known as a uniparametric distribution as it is characterized by only one parameter. तो ये अंडरलाइन कीजिए कि क्योंकि बाइनोमियल में हमने क्या देखा, वो बाई पैरामेट्रिक, क्योंकि वहाँ पे दो पैरामीटर्स का यूज़ किया, एक एन एंड पी. लेकिन यहाँ पर Poisson distribution is known as uniparametric distribution as it is characterized by only one parameter m. इसमें एक ही पैरामीटर यूज़ किया m. The mean of Poisson distribution is given by m e i comma e. That is mean is equal to m. ठीक है, तो mean is equal to m only. The variance of Poisson distribution is given by variance is equal to m. तो देखा आपने यहाँ पे mean का भी is equal to m ही है और variance का भी is equal to m है, यानी mean और variance यहाँ पर Poisson distribution में same होते हैं. ठीक है, mean is equal to variance. Like binomial distribution, Poisson distribution could be also unimodal or bimodal depending upon the value of parameters. ठीक है, तो यहाँ पर भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिमॉडल या बाइमॉडल हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 6 point, Poisson approximation to binomial distribution. If n the number of independent trials of a binomial distribution tends to infinity and p the probability of success tends to 0 so that m is equal to np remains finite, then a binomial distribution with parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with the parameter m is equal to np. In other words, when n is rather large and p is rather small, so that m is equal to np is moderate, then beta n comma p is equal to or similar to probability of mass. ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको कहा कि जिस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फिनाइट के लिए होता है, फिनाइट नंबर्स के लिए कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तब आता है जब वहाँ पर इन्फिनिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ तक फाइंड करना है. ठीक है, तो तब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी देखते हैं यहाँ तक कितना हमारा कवर हुआ है. क्वेश्चन नंबर 20. सो विच वन इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइसन मॉडल. तो हमने देखा अभी क्या कंडीशन है. A, the probability of having success in a small time interval is constant. ठीक है. The second, B, the probability of having success more than one is in a small time interval is very small. तो ये तो था वहाँ पे कंडीशन. The probability of having success in a small interval is independent of time and also of earlier success. ये भी पॉइंट था वहाँ पर. The probability of having success in a small time interval t, t plus dt is kt for a positive constant k. ये भी था वहाँ पे. ए पॉइंट नहीं था. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट. ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारा कंडीशन नहीं था पॉइसन मॉडल में. तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो बाइनोमियल आएगा, और यूनिपैरामेट्रिक पूछा है तो पॉइसन आएगा. ओके, सो बी ऑप्शन. Question number 22. For a Poisson distribution, mean and standard deviations are equal. Mean and variance are equal. Standard deviation and variance are equal. Both A and B. तो हमने देखा Poisson distribution में mean and variance are equal. ठीक है, तो ऑप्शन B. Question number 23. Poisson distribution may be. तो Poisson distribution may be unimodal, biomodal, bimodal भी होगा, multimodal नहीं है. तो D ऑप्शन A और B दोनों दिया है, तो yes, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल भी है और बाई मॉडल भी है, तो ए और बी दोनों आएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी. ओके, 24. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज तो ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑलवेज नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिक ओनली व्हेन m इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर आपके थियोरी में नहीं दिया है, बट आप याद रख लीजिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो थियोरी में मिसिंग है वो आप याद रख लीजिए ऐसे. 25th question. A binomial distribution with parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with parameter m is equal to np is. तो हमने क्या देखा, कहाँ तक है, n से इन्फिनिटी तक एंड p से 0 तक, सो दैट np रिमेन्स फिनाइट. देखा ना हमने यहाँ पर, कहाँ पर था,
यस पेज नंबर 17.12 पे देखिए 6th पॉइंट. If n the number of independent trials of a binomial distribution tends to infinity and p the probability of a success tends to 0, so that m is equal to np, right? तो सेम वहाँ पे पूछा है आपको. तो a binomial distribution with parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with parameter m is equal to np is कब? जब हमारा n जो होगा वो इन्फिनाइट होगा एंड p जो होगा वो 0 होगा, सो दैट np रिमेन्स फिनाइट. ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 26. For Poisson fitting to an observed frequency distribution. So for Poisson fitting to an observed frequency distribution, option A, we equate the Poisson parameters to the mean of the frequency distribution. तो इसका आंसर A है, आप ये भी याद रख लीजिए. B, we equate the Poisson parameters to the median, ये नहीं है. We equate the Poisson parameters to the mode, ये भी नहीं है. मीन में इक्वेट करते हैं Poisson parameters को. ठीक है, याद रख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 27. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज. सो हमने ये तो देखा है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमारा 27 का आंसर है बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 28. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय. तो डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है ए ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 2 pi into e raised to minus half upon x minus mean upon standard deviation whole square. ठीक है, यह उसका फॉर्मूला है. हाँ, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो ऑप्शन ए है. ठीक है, बी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है. सो 28 का आंसर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व. अच्छा, अभी नॉर्मल कर्व पे आ गया, नॉर्मल डेंसिटी पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. तो कम बैक टू थियोरी. Come to page number और वो जो फिटिंग ऑफ आया था क्वेश्चन नंबर 26 फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हमने लिखा वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वो आंसर आप देखिए पेज नंबर 17.18 पे, फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर है. ठीक है, तो जस्ट एक बार रीड कर लेना. अब 17.19 पर नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. द टू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस सो फार नेमली बाइनोमियल एंड पॉइजन आर एप्लीकेबल व्हेन द रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट. तो ये कब होता है बाइनोमियल और पॉइजन, जब वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होगा, इंडिविजुअल होगा. इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट और वेट, it is impossible to distribute the total probability among different mass points because between any two unequal values there remains an infinite number of values. ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि ये जो बाइनोमियल और पॉइजन हमने देखा वो तब एप्लीकेबल होता है जब वो डिस्क्रीट होगा, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा. और इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस अगर रैंडम वेरिएबल है जैसे कि हाइट है, वेट है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल प्रोबेबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट मास पॉइंट्स. तो वो इम्पॉसिबल होता है, एक पर्टिकुलर नंबर देना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो कंटिन्यूस होता है हाइट. बिकॉज बिटवीन एनी टू अनइक्वल वैल्यूज देयर रिमेन्स एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. तो वहाँ पर एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू बैठ जाता है. दस द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड ऑफकोर्स सच अ फंक्शन रियली एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स satisfy the following condition. ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल distribution. Though many mathematicians like De Morgan, Laplace, etc. contributed towards the development of normal distribution, Carl Gauss was instrumental for deriving normal distribution, and as such normal distribution is also referred to as Gaussian distribution. ठीक है, यहाँ पर continuous random variable x is defined to follow normal distribution with parameters mean and standard deviation to be denoted by. Okay. If the probability density function of the random variable x is given by, तो f of x देखा हमने, जो फॉर्मूला भी देखा था तो वो उसका फॉर्मूला है. ठीक है, अब some important points relating to normal distribution listed below. The name normal distribution has its origin some 200 years back, as and then mathematicians were in search of normal model that can describe the probability distribution of most of the continuous random variable. If we plot the probability function y is equal to f of x, then the curve known as probability curve takes the following shape. ठीक है, तो ये शेप आया था उसका. नीचे a quick look at figure 17.1 reveals that the normal curve is bell shaped.
तो नॉर्मल कर्व कौन सा शेप का है, बेल शेप का है। सी ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप, तो ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। और आगे, एंड हैज़ वन पीक विच इम्प्लाइज दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ वन यूनिक मोड। ठीक है, तो वन यूनिक मोड, the line drawn through x is equal to mean has divided the normal curve into two parts which are equal in all respects. Such a curve is known as symmetrical curve and the corresponding distribution is known as symmetric distribution. Thus we find that the normal distribution is symmetrical about x is equal to mean. It may also be noted that the binomial distribution is also symmetrical about p is equal to 0.5. We next note that the two tails of the normal curve extends indefinitely on both sides of the curve and both the left and right tails never touch the horizontal axis. The total area of the normal curve, or for that any probability curve is taken to be unity, that is 1. तो टोटल एरिया कितना होता है नॉर्मल कर्व का, 1 होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। सी द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और हमने ये भी देखा द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, क्वेश्चन नंबर 31 द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, तो इसका आंसर है सी। ओके, सिंस द वर्टिकल लाइन, अगेन थियरी पे आ जाओ। सिंस द वर्टिकल लाइन ड्रॉन थ्रू एक्स इज इक्वल टू मीन डिवाइड द कर्व इन टू इक्वल हेल्प्स, इट्स ऑटोमेटिकली फॉलो दैट द एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू मीन इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन मीन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। देखिए, द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज बिटवीन इन्फिनिटी टू मीन 0.5, बिटवीन मीन टू इन्फिनिटी इज 0.50। तो सी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये तो नहीं है। और डी बोथ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों राइट है, तो हम लेंगे ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 43 जो कि 10 क्वेश्चन है, दैट आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जस्ट गो थ्रू द थियोरी वंस। ये जो एक्सरसाइज है सेट ए, वो पूरा थियोरी पे बेस्ड है। थियोरी एक बार रीड कीजिए अच्छे से, आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगे। ओके, सो जस्ट रिवाइज इट। थैंक यू।